Hello students, welcome back to my AMR YouTube channel. Today we will discuss Thales theorem or basic proportionality theorem, that is BPT. इसको हम Thales theorem भी कहते हैं. Okay students, so नीचे देखो question आ रहा है. So what they given here students? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. So now what they given here students, in a triangle ABC, and now DE is parallel to side BC which cuts AB at D and AC at E. So now you have to construct one thing, that is DE is parallel to BC. So now DE कहाँ है इधर? DE का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? D and E are two vertex. मतलब इस DE को हम कंस्ट्रक्ट करने से BC को पैरेलल आनी चाहिए. सो BC को पैरेलल मतलब यही है ना स्टूडेंट्स. सो मान लो दिस इज D and this is E. So D and E is parallel to this BC. Am I correct students? So before going to write the constructions, first of all you need to know what wants to what was the answer. So before going to start the proof, first of all what you need to prove, that means we need to prove here AD by DB is equal to AE by EC. Now you have to write that to prove. Okay students, listen here. AD by DB is equal to AE by EC. So now what are D and E here? DE is parallel to BC. So this is the construction. So now join BE and CD. So now draw EM is perpendicular to AB and DN is perpendicular to AC. हम ये क्यों ड्रॉ करे हैं आगे पता चल जाएगा आपको. अभी तो फिलहाल आप ड्रॉ करो. So what we have to do first students, join BE and CD. So join BE and CD. So this one. Okay, and also draw EM is perpendicular to AB and DN is perpendicular to AC. So AB के पास एक M को कट करेंगे. मान लो this is M and here AC के पास N कट करेंगे. मान लो this is N. Now EM is perpendicular to AB. So this is EM is perpendicular to AB. मतलब इधर perpendicular है ना students, this is a 90 degrees. This is having a 90 degrees. And DN is perpendicular to AC. DN is perpendicular to AC. मतलब join D and N. And this is perpendicular to which one side? AC side. So this is having a 90 degrees. Okay, before going to start the proof, first of all you need to know what is the basics of a triangle. Okay students, इस theorem में हम only area of triangle के बारे में ही बात करेंगे. What is area of triangle? Area of triangle is equal to 1/2 into base into height. ये तो सबको पता है. Am I correct? So now base तो पता है BC और AB और AC, कुछ तो ले बेस आप. बट हाइट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कुछ पॉइंट से, मान लो बी वर्टेक्स से आप एक मिड पॉइंट खींच रहे हैं, AC को मिड पॉइंट खींच रहे हो, तो दिस इज अ मिड पॉइंट. मान लो दिस इज अ हाइट, B and D, मान लो दिस इज D. ओके, सो B and D is height. Then what is the base here? A and C is the base. So write down 1/2 into AC into BD. Simple students. Okay, अगर आपको see here perpendicular line ही खींचना होगा. अगर आपको ऐसा हो, so मान लो ये BC. So now मैंने तो क्या ड्रा कर रही हूँ, ये से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रही हूँ, दैट इज B6. दैट मीन्स हियर मान लो दिस इज D. दैट मीन्स
इट इज हैविंग अ 90 डिग्रीज, राइट। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ही होता है कि ताकि हम 90 डिग्रीज ड्रॉ करें, 90 डिग्रीज ड्रॉ करें किसी भी वर्टेक्स से. सो दीज आर वर्टेक्स स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट दैट. Okay, now what is the height here? AD is the height and BC is the base. Simple. Am I correct students? So ये सब कुछ आप प्रूफ के साइड में लिखना चाहिए, ओके, ताकि आप भूलना नहीं है. Okay students, so start proof. So what we given here? Given DE is parallel to BC, मतलब DE is parallel to BC. Okay, now we have to prove that. We have to prove what we have to prove students. AD divided by DB is equal to AE divided by EC. Am I correct? So now you have to take. Now let's see what is area of triangle ADE. ADE कौन सा है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हियर एडीई. ड्रॉ करो वो सेपरेट से. ओके, ट्रायंगल तो मैंने ड्रॉ किया है. नाउ इधर देखिए, एडी, दिस इज द ट्रायंगल. आप बताइए कौन सा हाइट लेने चाहते हैं वो आप, ई से एम और डी से एन. मैंने तो लूंगी ई से एम, क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या ड्रॉ किया था, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एन इज परपेंडिकुलर टू ये सी. मतलब पहले हम इस साइड को लेना चाहिए, ये बी वाला प्रूफ करना चाहिए, ये बी वाला प्रूफ करना चाहिए. ओके, क्योंकि इधर ये डी है ना, यही इसी का साइड है, ये डी इज इसी का साइड है. समझ में आ रहा? बाई डी बी भी इसी का साइड है. मतलब पूरा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बी का साइड होगा. इसलिए मैंने क्या कह रही हूँ, मैंने यम को ही लेना है, ई यम को ही लेना है. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. सो ड्रा हियर EM. So perpendicular. Now AD क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस. एंड EM क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइट. ओके, नाउ टेल मी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. So that is equal to 1/2 into what is base here students? AD into what is height here? What is height here? EM. ये वाला height EM. Understand? Please note down. So अब आपको confusion आएगा कि what is an area of triangle DEB. मान लो DEB किधर है students? DEB, right? ये वाला triangle आप draw करना है, जैसा है वैसे ही draw करो. Okay, this is DE and B. Okay students, now tell me which one is the perpendicular side. आप कुछ भी वर्टेक्स लो, चाहे B लो, D लो, E लो, हमको क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने आता है या नहीं आता है? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए D से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट एंगल. देखिए राइट एंगल तो एल शेप में आना चाहिए ना, ऐसा आना चाहिए. दिस इज अ राइट एंगल, है कि नहीं? तो दिस इज ऑब्ट्यूज अक्यूट एंगल. ये तो अक्यूट एंगल आ रहा है और ये तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, बट हमको तो राइट एंगल चाहिए ना, है कि नहीं? नहीं आ रहा. आप मान लो बी से स्टार्ट करो, बी से देखो तो भी इधर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा, अक्यूट एंगल आएगा और इधर तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, राइट एंगल ही नहीं आएगा. बट हमको तो राइट एंगल चाहिए ना, तो इसीलिए हम क्या करें, लिसन वेरी केयरफुली. सो परपेंडिकुलर आने के लिए मैंने क्या कर रही हूँ, ये वाला D है ना, सो इसको मैंने ऐसे खींच रही हूँ कुछ, और E को ज्वाइन कर देती हूँ, ऐसे E को ज्वाइन कर देती हूँ. E को ज्वाइन करने से ये वाला इधर राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से आ गया ना. अब आप बताइए, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, ये कौन सा है इस फिगर में? देखिए DBE, ये है ना DBE, ये वाला ट्रायंगल है. यहाँ से हम ये वाला लाइन खींच रहे हैं, राइट? ये वाला परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स? यम पॉइंट है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नाउ EM इज ए हाइट. Am I correct? EM is
height. Okay, this dB is base. So now tell me 1 by 2 into base into height. 1 by 2 into what is base here? Base is dB. Into what is height here? Height is EM. Understand everyone? Please note down first. And now अब हम क्या करेंगे? Area of triangle ADE divided by area of triangle DEB. यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स. हमें क्या प्रूफ करना था? AD by DB. AD by DB. इधर देखिए, इधर भी AD है, इधर भी DB है. कॉमन ये एक ही है, दैट इज E. है कि नहीं? तो इसीलिए हमने रेशियो के टाइप लिख रहे हैं. AD by DB, that is area of triangle ADE, area of triangle DEB. Now tell me what is the answer of area of triangle ADE? That is 1 by 2 into AD into EM divided by 1 by 2 into DB into EM. Am I correct students? पता है हमने ये दोनों ही क्यों लिया है? देखिए, हम इस दोनों को कैंसिल करने से AD by DB आ गया है. यही तो प्रूव करना था हमने, AD by DB. इज इट राइट स्टूडेंट? सो राइट डाउन दैट इज इक्वल टू AD by DB. एक रेशियो तो आ चुका है. एंड नाउ सेम प्रोसेस हम AE by EC को भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे. ओके, लिसन एवरीवन. सो AD by DB करने के लिए हमने दो ट्रायंगल लिए थे, यही एक ही साइड का. ये कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट्स? ADE एंड अनदर वन DEB. एक ही साइड के लिए थे. अब नाउ आपने क्या प्रूव करना है? AE by EC प्रूव करना है. AE by EC प्रूव करना है. मतलब आप ट्रायंगल्स लेंगे तो इसी साइड के ही लेना चाहिए. सो ADE एक लेंगे एंड नेक्स्ट ट्रायंगल EBC लेंगे. यही वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC. सिंपल, आप ऐसे ही करो. सो 1 by 2 into what is base of ADE स्टूडेंट्स? बेस ऑफ ADE. सेम स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके थे ADE का. सो वही लिखो, 1 by 2 into AD into EM डिवाइडेड बाय नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC का प्रूफ करेंगे हम. So take separate triangle students of area of to find area of triangle EDC. Take separate triangle and don't forget to note this. Okay. EDC कहाँ है students? EDC यही ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है. अब आप बताइए, कुछ भी वर्टेक्स लो, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप? मतलब 90 डिग्रीज आनी चाहिए. यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो ये तो अक्यूट एंगल आया और इधर तो ऑब्ट्यूज एंगल आया, बट राइट एंगल तो नहीं आएगा. इसीलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए वाला है ना, इधर देखो, पहले हम इस दोनों के लिए स्टेम्पो DN इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. अब हम इन दोनों के लिए ले रहे थे ADC, ये वाला ले रहे थे, राइट? ये वाला ही EDC, यस राइट, ये वाला ले रहे थे. तो हम परपेंडिकुलर क्या होगा? पहले DN हुआ, पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स? सॉरी EM हुआ था. अब क्या होनी चाहिए? DN परपेंडिकुलर से ड्रॉ करना है. मतलब ऐसा E को ऐसे थोड़ा खींचो और इसको D को ज्वाइन कर दो. सो ये तो N हो गया, ये तो परपेंडिकुलर आ गया. Am I correct? So now this is the height and this is the base. Okay students? अब देखो, मैं ये गलत प्रूफ करूंगी. अब बताओ 1 by 2 इंटू, सो क्या है 1 by 2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज DC इंटू हाइट इज DN. सो 1 by 2 तो कैंसिल हो जाएगा. बट आप क्या ये प्रूफ कर सकते हैं क्या? AE by EC कर सकते हैं, AE by EC कर सकते हैं. देखिए इधर तो कुछ भी कैंसिल नहीं आया, बट कुछ तो गड़बड़ करे हम. Am I correct स्टूडेंट? इधर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हम ये साइड लिए थे, ADE मतलब ये वाला साइड लिए थे, बट हमको तो ये साइड लेनी चाहिए, AE वाला. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? सो नाउ लिसन केयरफुली. पहले तो ए ट्रायंगल में E से स्टार्ट किया था, राइट? EM तो स्टार्ट किया था, बट हमको तो N चाहिए, मतलब DN को ज्वाइन करना है. ज्वाइन करो,
dn को, ये वाला d से n तक. So now this is a height and AE is a base. Now अब proof करो. So area of triangle ADE क्या होगा students? 1/2 into what is the base here? AE into what is height here? DN divided by, so as it is. Next 1/2 into DC divided by DN. DC into DN. So now you can cancel DN 1/2 1/2. So now what is the remaining here? AE divided by DC. So now area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC. Therefore we proved that, क्या प्रूव किया है स्टूडेंट्स हमने? This one and this one must be equal. That means AD divided by DB is equal to AE divided by BC. Very important proof students, please note down. So in the next video we will discuss converse of basic proportionality theorem. इसका converse है. Converse कैसे लिख सकते हैं students? Listen. यहाँ तो D parallel to BC देके AD by DB is equal to AE by EC proof करने को कहा था. But converse में क्या करेंगे? Converse मतलब उल्टा, मतलब AD by DB is equal to AE by EC दे डालेंगे. But हमें तो prove करना है कि AE is parallel to BC. Okay? In the next video we will discuss. Please note down everything. And thanks for watching up to now. And if you like my channel, please subscribe and like and share to your friends. Thank you. Bye bye students.